Myself Rupesh Rathod, currently pursuing Bachelor's in Planning from NIT Bhopal. So here I am going to teach JEE Maths and my topic is matrices. So here continuing with matrices, first what is matrices? It's a rectangular arrangement of elements. Like we can understand by an example. So what is matrices? It's the rectangular arrangement of elements. So we can understand by an example. Yeah. So like A11. These are the elements which comes in the matrices. So like these are the elements A11, A12. So here we can see these are the like column 1, column 2, column 3 and to the column, and then these are the row 1, row 2. So you can see here. Now like it's the last term will be A. M cross N. So what will be the order of these matrices? This M cross N, which is the order of the matrices. So now this is the first example of the matrices. Now we can come to the order of the matrix. Yeah. So this M cross N is the order of the matrix, where where this M is row and the N is column. So what matrix is this? Row into column. Row into row into column. Here we can see basically the matrices is the product of the row and the column, which are the elements in the matrices. So now going forward, we have the for this we have also one example. Yeah, so this is an example in which we can see how many columns in this. Here it's row first, row second, column first, column second, column third. First, second and third.
And so now the order of these matrices is m cross n, which is row into column. So what is row? There are two rows, so its order is 2 cross 3. This is the basically this is the order of this matrices 2 cross 3. ये 2 cross 3 होगा इस matrices का order. अब हम इसे और कैसे समझ सकते हैं कि रोज क्या होगी? तो एक और प्रॉपर्टी होती है इसके लिए, लाइक बहुत सारे टाइप्स के मैट्रिसेस होते हैं, लाइक रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, और तो हम इसको आगे कैसे समझ सकते हैं, लाइक द रो मैट्रिसेस. अब अपन आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में देखते हैं. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कितने होते हैं? Like different types of matrices, row matrices, column matrices, horizontal matrices. तो हम यहाँ पे row matrices की बात करते हैं पहले. रो मैट्रिक्स. तो रो मैट्रिक्स से आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि रो मैट्रिक्स क्या होगा. रो मैट्रिक्स लाइक जिसमें सिर्फ रोज होगी, लाइक एक ही रो होगा और नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी डिफरेंट. तो लाइक number of rows equal to 1, but number of columns equal to n. This you can see. So by an example we will be seeing this. So like a equal to 1, this. So what will this is the row matrices in which there will be only one row but number of columns can be different. Now by this we can understand column matrix. जैसे रो मैट्रिक्स में एक रो होती है और कॉलम्स के नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स में बिल्कुल इसका अपोजिट. तो नंबर ऑफ columns equal to 1 but the number of rows equal to m. तो इसमें इसका एग्जांपल ऐसे हो जाएगा, a11 a So this will be a column matrix in which the there will be only one column or number of rows can be varied. So a11, a21 and am1, it will go to am1. So now these are the row and column matrix. Now coming forward to horizontal matrix. What will be horizontal matrix? By the name only we can understand what is horizontal matrix. तो horizontal matrix को अपन एक बार देख लेते हैं. horizontal matrix क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और अपन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को और वर्टिकल मैट्रिक्स को अपन दोनों को साथ में देख सकते हैं. तो यहीं पे मैं वर्टिकल मैट्रिक्स के बारे में भी बता देता हूं.
खत्म हो गया है। तो बाय द नेम ओनली वी कैन सी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज, number of rows can be more like order, like we can understand by an example, कि example से समझते कि ये क्या होगा। तो और वर्टिकल मैट्रिक्स का भी एग्जांपल लिख लेते हैं अपन। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर, अब इसमें कितने रोज है? अगर हम यहां पर देखें तो इसमें एक और दो रो, तो जो इसका ऑर्डर होगा वो 2 इंटू हाउ मेनी कॉलम्स? 5, 1 2 3 4 5, 2 into 5, and here the number of rows will be 1 2 3 4, so 4, and how many number of columns? There will be only 2 columns, so like this. So here ये हमें क्या बता रहा है इन दोनों चीजों को देखते हुए कि अगर हम यहाँ पे देखें m क्रॉस n जो है 2 क्रॉस 5 है और यहाँ पे m क्रॉस n है 4 into 2, तो कभी भी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में जो m की वैल्यू होगी, जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में m की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कम होगी n से, और जो वही उसी के अपोजिट जो वर्टिकल मैट्रिक्स होगा उसमें n की वैल्यू यहां पर लिख लेते हैं, जो m की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन n की वैल्यू होगी। तो ये बेसिक डिफरेंस देख सकते हैं हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स में। अब इसी के आगे बढ़ते हैं हम, तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स। अभी तक हमने कितने टाइप के मैट्रिक्स देख लिए? 4 टाइप के। ये क्या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया और ये वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, और टाइप्स के मैट्रिक्स में आगे बढ़ते हुए अपन देखेंगे नल और जीरो मैट्रिक्स। क्या देखेंगे? नल और जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि नल या जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, लाइक जिसकी वैल्यू हमेशा जीरो हो। तो लाइक हियर वी कैन अंडरस्टैंड लाइक aij इक्वल टू 0 फॉर एवरी i एंड j। ठीक है, जो नल मैट्रिक्स होगा, जैसे जो नल मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होगी। वो ऐसे भी लिखा जा सकता है या ऐसे भी लिखा जा सकता है। हमेशा नल मैट्रिक्स की वैल्यू होगी जीरो। तो यहां पे है ये हमारा 5th नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का नल एंड जीरो मैट्रिक्स, जिसमें aij जो हम लिख रहे हैं एलिमेंट, हमेशा उसकी वैल्यू जीरो होगी फॉर एवरी i एंड j। तो a की जो वैल्यू है, मतलब जो मैट्रिक्स की वैल्यू होगी वो हमेशा जीरो होगी। Now coming to the next matrix, which is square matrix. सिक्स्थ नंबर का हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स चल रहा है। यहां पर हम लिख देते हैं एक चीज, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में 6th नंबर का मैट्रिक्स आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स।
तो हम इसके भी नाम से ही समझ पा रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें ऑर्डर जो रहेगा, सीधे सिंपल बात है, जो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। जैसे हम देख सकते हैं, एक एग्जांपल से ही मैं आप लोगों को समझाता हूं। लाइक दी नंबर, एक बार हम ये वाली चीज को लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो A इक्वल टू 1 2 3 4, या फिर A इक्वल टू 1 5 6 3 2 1 5 6 7। तो यहां पे ऑर्डर क्या हुआ इसका, 2 क्रॉस 2, सॉरी 2 क्रॉस 2, और यहां पे इसका ऑर्डर हुआ 3 क्रॉस 3। सो हम यहां देख पा रहे हैं व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये वाला मैट्रिक्स हुआ किस ऑर्डर का, 2 क्रॉस 2, और ये जो मैट्रिक्स हुआ ये हुआ 3 क्रॉस 3। तो यहाँ पे एक और चीज आती है, डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स इज लाइक बेस्ड ऑन दिस ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट्स हमेशा, डिटरमिनेंट का ऑर्डर ऐसे ही होता है, वो हम फिर कभी पढ़ेंगे, वो एक और अलग सा टॉपिक है जो मैट्रिसेस से कनेक्ट होता है, बट वो भी एक इसी चीज पे डिपेंड होता है कि लाइक उसका भी ऑर्डर जो होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा होता है। सो यहाँ पे अभी हमने देख लिया 6th नंबर के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है, और जो ये वाला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है, उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। तो ये होगा 6th नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम इसी के कुछ टाइप्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, लाइक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब इसी का टाइप देखते हैं हम। In square matrix there is a type which is triangular matrix. Triangular matrix में भी अब दो टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, एक A अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड इसी के अपोजिट एक और चीज होती है which is लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब पहले हम इसी को देख लेते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये मैट्रिक्स है, तो इसमें लाइक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि लाइक A B C D E F, और ये 0 0 0। और जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है वो होता है A B C D E F 0 0 0। तो लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज है, तो लाइक इसको हम समझ लेते हैं। तो जो Aij is equal to 0 when I is greater than j. So when there will be when I will be greater than j, जब I j से greater than होगा तब aij की वैल्यूज 0 0 होगी। तो ये क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है ये होती है a21, ये होती है a31। तो हम देख सकते हैं कि जो इसकी I की वैल्यू है वो 2 और जो j है वो 1, which is greater than I is greater than j। वैसे ही अब अपन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को समझेंगे, तो इसकी भी सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, जो होती लाइक सिमिलर नहीं, लाइक इसी से सिमिलर बट इसके अपोजिट। तो जो aij होता है उसमें I is less than j होता है। oh sorry, like aij when will be 0 when I will be less than j।
जब i की वैल्यूज j से लेस देन 0 लेस होगी तब aij की वैल्यू 0 होगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये वाली जो वैल्यू होती है ये होती है a12, ये वाली वैल्यू होती है a13। तो जब i की वैल्यूज जब जब भी जैसे इसको भी देख लेते हैं ये वाली वैल्यू होगी a23। i की वैल्यूज हमेशा j से जब भी i की वैल्यू j से कम होगी तब उन प्लेसेस पे 0 आएगा। तो ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यही टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम आगे बढ़ते हैं और डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो इसकी डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक पार्ट ही है। तो हम अब डायगोनल मैट्रिक्स देख लेते हैं। हाँ, तो ये बी ट्रायंगल स्क्वायर मैट्रिक्स के दो टाइप्स हैं, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक हम डायगोनल मैट्रिक्स देख रहे हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, अब डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इसमें जो भी मैट्रिक्स होगा उसके डायगोनल पर ही कुछ वैल्यूज का चेंज होगा, तो हम उसकी बात करते हैं। अब इसमें इसको भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि एग्जैक्टली डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो लाइक a इक्वल टू b1 व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? जब किसी मैट्रिक्स की सिर्फ डायगोनल्स पे कुछ वैल्यूज हो और बाकी जो सारी वैल्यूज है वो हमेशा 0 हो, दैट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स। और इसको हम एक प्रॉपर्टी से समझ सकते हैं, जब a i j की वैल्यू 0 कब होगी? जब i नेवर इक्वल टू j रहेगा। जब i और j की वैल्यूज, जैसे ये वाली जो वैल्यू रहती है ये a11, ये जो है ये a22 और ये a33, तो इसकी सेम प्रॉपर्टी है कि aij की वैल्यूज कब 0 रहेगी? जब i शुड नॉट बी इक्वल टू j, क्योंकि यहाँ इन तीनों पे एक एक वैल्यूज रहेगी, कुछ वैल्यूज रहेगी डिफरेंट, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इसी में इफ इस डायगोनल पर सेम वैल्यूज हो गई, अगर ये मैट्रिक्स अगर इन डायगोनल्स पर, जैसे ये a इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2, अगर मैट्रिक्स की वैल्यू ये हो गई तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स में, एक मैट्रिक्स लाइक स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स होगा और उसी का एक और इसका टाइप होगा जिसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। तो ये जो एग्जांपल है ये आएगा स्केलर मैट्रिक्स के अंदर। स्केलर मैट्रिक्स, ये क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स जब भी डायगोनल पे सिमिलर वैल्यूज हो, जैसे 2 2 2, बाकी सारे प्लेसेस पर 0 आएगा। जब डायगोनल पे सिमिलर वैल्यूज होगी तब ये हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। अब इसी में एक और टाइप होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? इसमें भी जो सारे डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा 1 होता है। जैसे यहाँ पर क्या था, जो स्केलर मैट्रिक्स है उसमें जो डायगोनल पे उस पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, और लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा ना वो होगा जब डायगोनल पर ओनली 1 हो। जैसे ये वाला एग्जांपल से देख सकते हैं, ये इस डायगोनल पर 1 हो तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्पेसिफाइज दैट कि जो भी डायगोनल पे हमेशा जो भी वैल्यू आएगी वो 1 होगी, इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल पे हमेशा 1 रहेगा। वो चाहे कोई भी ऑर्डर का हो, ये अभी 2:2 ऑर्डर का है, चाहे वो 3:3 ऑर्डर का हो, तब भी डायगोनल पर हमेशा वैल्यू 1 रहेगी। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो हमेशा मैट्रिक्स में 0 रहेंगे।
तो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म करते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पर। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से अब हम आगे बढ़ते हैं कहाँ, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पर। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूं, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो चौक खत्म होगा, चौक ले लेते हैं। तो अब हम मैट्रिक्स में हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस खत्म हो गए हैं, अब हम आते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पे। तो इसमें हम पहली चीज देखते हैं इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। फर्स्ट चीज देखते हैं इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में फर्स्ट चीज देखते हैं इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस इज व्हाट, टू और मोर मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस कब इक्वल कहलाएंगे, वही है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इसकी कुछ कंडीशंस होती है। तो इसमें पहली कंडीशन है इसकी, इफ द ऑर्डर शुड बी सेम। अगर किसी भी मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हुए, लाइक ये ए बी सी डी, ये 2 क्रॉस 2 है, और P Q R S ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो इन केस ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो सकते हैं। दैट्स व्हाट इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इसकी पहली जो कंडीशन है उसमें यह है कि जो दोनों के ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ये है पहली कंडीशन इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस की। अब हम दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन ये होगी कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो दोनों सेम होना चाहिए। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर A इक्वल टू P हो जाए, A इक्वल टू P, B इक्वल टू Q, C इक्वल टू R और यही D इक्वल टू S, अगर इनमें से ये जो सारी कंडीशन है अगर ये फुलफिल हो जाए तो भी वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो जाएंगे। तो ये दो कंडीशंस होती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की। अब हम इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा। ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक ए मैट्रिसेस है जिसकी वैल्यू है मान लेते हैं 1 5 x 6, ठीक है, और एक बी मैट्रिसेस है जिसकी वैल्यू है y z 3 6। अब हमें एक कंडीशन दी है कि ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं ये दोनों इक्वल हैं, तो हमें x y z की वैल्यूज बता रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x y z। तो अभी जो हमने कंडीशन देखी जिसमें हमने देखा कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ये, फिर ये और ये। अब जो हमने एक कंडीशन देखी जब इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस होंगे तो A इक्वल टू B कब होगा, जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। तो यहां पर हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि x y z की वैल्यूज क्या हो जाएगी। तो अगर हम यहां पर देखें तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, y की वैल्यू हो जाएगी इस वाले मैट्रिसेस में y की वैल्यू 1 हो जाएगी और z की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो एक ये एग्जांपल था जिसमें ये हमारी तीनों वैल्यूज आ गई। ऐसे ही कोई और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम कम है तो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी इसमें जैसे x y z की वैल्यूज आ गई, सारे जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो बराबर होना चाहिए। जैसे जो y है वो 1 हो गया, जो 5 है वो z हो गया, फिर x की वैल्यू 3 हो गई और 6
और दोनों एलिमेंट दोनों मैट्रिसेस में 6 की जो प्लेसेस थी वो सेम थी और दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है तो वो दोनों सेम हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में हम दूसरी चीज पे आते हैं, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में हम आते हैं सेकेंड चीज पे, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, क्या है अब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस का एडिशन कैसे करना है। तो लाइक दो मैट्रिसेस है, A प्लस B मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है A IJ प्लस B IJ। अब दो इसमें एक मेनली एक प्रॉपर्टी होगी कि दो मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे तो उनमें जो दोनों का ऑर्डर है, मैट्रिक्स A का ऑर्डर और मैट्रिक्स B का ऑर्डर सेम होना चाहिए। लाइक एक एग्जांपल से समझते हैं, हम 1 2 3 4 अब इस एग्जांपल में हमने तीन मैट्रिसेस लिखे हुए हैं A, B और C। अब लेकिन प्रॉपर्टी के हिसाब से कि जब भी हमें दो मैट्रिसेस का एडिशन करना होगा तो उन दोनों के ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर है 2 into 2, इसका भी ऑर्डर है 2 into 2, बट इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है अपना क्या बोलते हैं, इसका ऑर्डर आएगा रोज इनटू कॉलम। अब इसमें कितने रोज है, एक रो, दो रो, तीन रो, और कॉलम्स कितने हैं, दो। सो इसका कितना ऑर्डर है 3 into 2। अब प्रॉपर्टी के हिसाब से जब हम एडिशन कर रहे हैं तो दोनों मैट्रिसेस के जब ऑर्डर सेम होंगे तभी उनका एडिशन हो सकता है। तो यहां पर A प्लस B कभी नहीं हो सकता, सो A प्लस C हमेशा हो सकता है। ठीक है, तो इसका पहली प्रॉपर्टी है A प्लस C। ये हमने एडिशन में एक प्रॉपर्टी देख ली है कि क्या बोलते हैं A प्लस B कभी नहीं हो सकता है क्योंकि उन दोनों के ऑर्डर अलग अलग थे। A प्लस C हो सकता है क्योंकि उनके ऑर्डर सेम थे। अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। फर्स्ट क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, A प्लस B मैट्रिसेस इज ऑलवेज इक्वल टू B प्लस A मैट्रिसेस। फिर अगली ये होती है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, क्यूमुलेटिव देन इसके बाद आएगा एक और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर आएगा एक एडिशन इनवर्स। अब इसमें हम क्या देखते हैं, A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A। ये है एडिशन इनवर्स। देन एक और आएगा एडिटिव आइडेंटिटी। अगर हम किसी मैट्रिसेस में 0 ऐड करेंगे तो हमेशा A आएगा। तो ये है एडिटिव इनवर्स। अब है एक कंसल्टेशन लॉ, कैंसलेशन लॉ, जिसमें होगा एक और प्रॉपर्टी ही है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस में, कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन लॉ में ऐसा होगा कि A प्लस B अगर A प्लस C के बराबर है तो A प्लस B अगर A प्लस C के बराबर है तो यहाँ पे डायरेक्टली B इक्वल टू C मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यही कुछ प्रॉपर्टीज है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में। अब हम अगली चीज देखते हैं,
अब हम अगली चीज देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यस, तो अब हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में थर्ड चीज देखते हैं जो है एक मैट्रिक्स की एक इंपॉर्टेंट चीज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। सो अगली चीज है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस में कुछ प्रॉपर्टीज होती है, लाइक दो हमारे पास मैट्रिसेस है, लाइक एक A मैट्रिसेस जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n और एक B मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q। तो दो मैट्रिसेस है हमारे पास, अगर एक A मैट्रिसेस B मैट्रिसेस, A मैट्रिसेस का ऑर्डर है m क्रॉस n, B मैट्रिसेस का ऑर्डर है p क्रॉस q। तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री मल्टीप्लायर, लाइक नंबर ऑफ कॉलम्स इन, मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री मल्टीप्लायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री मल्टीप्लायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ rows in post multiplier। तो एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस की एक सिंपल सी एक प्रॉपर्टी है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री मल्टीप्लायर शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट मल्टीप्लायर, व्हिच इज यहाँ पे ये है n और p, तो यहाँ पे n शुड बी इक्वल टू p। जो नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री मल्टीप्लायर में जो कॉलम्स है वो, और जो पोस्ट मल्टीप्लायर में रोज है वो p, ये दोनों चीजें हमेशा बराबर होना चाहिए। अब इसी की एक और प्रॉपर्टी है, अगर दो जैसे हम a और b मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो लाइक a m क्रॉस n इसका ऑर्डर है और b मैट्रिसेस इसका है p क्रॉस q इसका ऑर्डर है। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट a, जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो मैं यहां लिख देता हूं, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा जो a इंटू b मल्टीप्लायर होगा उसका जो ऑर्डर रहेगा m क्रॉस q। ये जो हमारा a इंटू b मल्टीप्लायर रहेगा इसका जो ऑर्डर आएगा वो m क्रॉस q रहेगा। AB मैट्रिसेस का जो A इंटू B मल्टीप्लिकेशन रहेगा उसका जो ऑर्डर आएगा वो रहेगा M क्रॉस Q। हम इस चीज को एक एग्जांपल से देखते हैं, तो इसको रब कर देता हूं मैं। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं, तो लाइक हम एक 0 1 2 1, इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2, ठीक है। अब हम इसी को एक क्या बोलते हैं, एक और उससे मल्टीप्लाई का मतलब एक और ये इसको लिख लेते हैं हम A मैट्रिसेस और एक B मैट्रिसेस है हमारा 2 इंटू 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो यहाँ का जो हमने पिछली कंडीशन देखी, नंबर ऑफ कॉलम इन प्री मल्टीप्लायर शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट मल्टीप्लायर, ये भी 2 है ये भी 2 है, मतलब A इंटू B जो मैट्रिसेस है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो अब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के लिए एक चीज होती है जिसे हम ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो पहले ऐसा होगा कि हम इस वाली रो का इसको पूरा एक एग्जांपल से ही समझेंगे, बट मैं आपको एक प्रिलिमिनरी नॉलेज दे देता हूं कि इस वाली जो रो रहेगी इसका पहले हम इस कॉलम से प्रोडक्ट करेंगे, फिर इसका सेकंड वाले से करेंगे,
फिर थर्ड वाले से, ऐसे ही सिमिलरली इसका फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से। तो इसको मैं वापस से आपको समझा देता हूं। a इंटू बी क्या आएगा, जीरो इंटू वन, जीरो इंटू वन प्लस वन इंटू फोर, वन इंटू फोर, ये हो गई पहली वैल्यू इस मैट्रिसेस की। फिर जो सेकंड वैल्यू रहेगी वो आएगी जीरो इंटू टू, जीरो इंटू टू और वन इंटू फाइव प्लस वन इंटू फाइव। देन थर्ड वैल्यू जीरो इंटू थ्री प्लस वन इंटू जीरो। फिर इसको अब इस वाले जो नीचे वाली रो है हम इसको फर्स्ट वाले कॉलम से करेंगे, तो टू इंटू वन, टू इंटू वन प्लस वन इंटू फोर, देन टू इंटू टू, टू इंटू टू एंड वन इंटू फाइव। ये रहा वन और ये रहा फाइव, वन इंटू फाइव, देन टू इंटू थ्री एंड वन इंटू जीरो, ये रहा वन, ये जीरो, वन इंटू जीरो। तो आप एक और चीज देख पा रहे होंगे कि इसमें जो टर्म आएगी वो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। जो ए क्रॉस बी, जो ए इंटू बी, जो ए मैट्रिसेस और बी मैट्रिसेस का प्रोडक्ट रहेगा, उसका जो ऑर्डर रहेगा वो आप देख पा रहे हैं क्या रहेगा। उसका ऑर्डर रहेगा टू क्रॉस थ्री, जिसमें है कितनी, दो रो और तीन कॉलम, तो टू क्रॉस थ्री। अब इसका मैं इसको रब करके आंसर लिख देता हूं। लाइक जो ए और बी मैट्रिसेस का प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा जीरो इंटू वन जीरो प्लस फोर, फोर, जीरो इंटू टू जीरो, फाइव, जीरो इंटू थ्री जीरो एंड वन इंटू जीरो जीरो। ये वाली टर्म भी जीरो हो गई। फिर टू इंटू वन टू, वन इंटू फोर फोर, सिक्स, इसका सम होगा यहाँ पर। फिर टू इंटू टू फोर, वन इंटू फाइव, फोर और फाइव नाइन हो गया। और ये वाली जो टर्म होगा टू इंटू थ्री सिक्स, वन इंटू जीरो जीरो, तो ये होगा जीरो। तो ये जिसका ऑर्डर आएगा टू इंटू थ्री, ये हो गया फाइनल मल्टीप्लीकेशन ए और बी मैट्रिसेस का। तो ऐसे होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो अब इसके आगे कुछ और टॉपिक्स बचे हैं एज वी हैव लेस टाइम। तो लाइक अभी हम हमारा जो मैट्रिसेस का बेसिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस था, जिसमें हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस देख लिया, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस देख लिया, देन ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस देख लिया। और इसके बाद अब इसकी प्रॉपर्टीज, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में और भी चीजें आती है, एडजॉइंट, देन डिटरमिनेंट एंड देन ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस, इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस। तो वो हम फिर कभी पढ़ेंगे। अभी एज वी हैव लेस टाइम, सो वी विल गोइंग टू कंक्लूड। थैंक यू।